عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز کے حوالے سے اور تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک سافٹ ویئر انجینئر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے کالے جادو کے چلتے۔ ایتھوپیا کے 45,000 سے زیادہ مہاجرین کس طرح سوڈان میں پناہ لی، وہ جہاں مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہیں پر یہ خبر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ کس طرح سے ایس سی طبقے کو راستے سے گزرنے نہ دینے کے لیے دیوار تعمیر کر دی جاتی ہے۔ اور اس وقت لگتا ہے کہ ٹرمپ پوری طرح سے اس وقت جو ہے ماند پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اقتدار منتقلی کا جو ہے پروانہ دے دیا ہے۔ کچرے کے ڈھیر میں، بورے میں کیا چیز ملی اور کس طرح کا بچہ ہے، وہ بھی میں بہت ساری چیزیں ناظرین، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ لنک کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ادارے کو مضبوط بھی کریں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایسی خبر کی جانب جو خبر واقعی میں دل دہلا دینے والی ہے۔ تلنگانہ سے آ رہی یہ خبر، سسرالی رشتہ داروں نے ایک شخص کو کالے جادو کے نام پر زندہ جلا دیا ہے۔ ایک چونکا دینے والی واردات میں سسرالی رشتہ داروں نے جس شخص کو کالے جادو کے نام پر زندہ جلایا ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات تلنگانہ کی ضلع جگتیال کے بلونت پور دیہات میں پیش آئی۔ اس نوجوان کی شناخت شہر حیدرآباد کے الوال کے رہنے والے 35 سالہ سافٹ ویئر انجینئر پون کے طور پر کی گئی ہے، جس کو اس کے سسرالی رشتہ داروں نے جسم پر پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ شخص بنگلورو میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر خدمات انجام دیتا تھا۔ چند سال پہلے اس کی شادی بلونت پور دیہات کی رہنے والی کرشنا وینی کے ساتھ ہوئی تھی، تاہم 12 دن پہلے اس کے برادر نسبتی جگن کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی، جس پر وہ سسرالی رشتہ داروں کو پرسہ دینے کے لیے پیر کو بلونت پور گیا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی اس کی بیوی اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کے سسرال پہنچنے پر اس کے برادر نسبتی جگن کی بیوی، جگن کے بھائی وجے اور دیگر اراکین خاندان نے الزام لگایا کہ پون کی جانب سے کالا جادو کرنے کے نتیجے میں ہی جگن کی موت ہوئی ہے۔ اس مسئلے پر ان کا پون سے جھگڑا ہو گیا۔ پیر کی شب مکان کے کمرے میں پون کو اس کے سسرالی رشتہ داروں کی جانب سے پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا گیا۔ وجے مکان سے متصل مندر کا پجاری ہے۔ مکان میں جھگڑا اور پھر آگ دیکھ کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی، تاہم تب تک پون زندہ جھلس گیا تھا۔ پولیس نے جگن کی بیوی، جگن کے بھائی وجے کو حراست میں لے لیا ہے۔ پون کی بیوی سے بھی پولیس پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالے جادو کرنے کا الزام لگا کر کے جو ہے کس طرح سے سسرالی رشتہ دار ایک سافٹ ویئر انجینئر کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ آپ اس خبر کی ہولناکی کو دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور یہ خبر یہ ہے کہ اگر بی جے پی کو موقع ملے تو حیدرآباد ہی فروخت کر دے گی۔ یہ بیان جس لیڈر نے بیان دیا ہے وہ تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ملک کو ہی فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر اسے موقع ملا تو وہ حیدرآباد کو بھی فروخت کر دے گی۔ حکمراں جماعت TRS کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راؤ نے کہا، سبھی جانتے ہیں کہ بی جے پی کو مسلمانوں سے کتنی نفرت ہے۔ کیا یہ بی جے پی نہیں ہے جس نے لوئر سلیور پروجیکٹ کو AP میں ضم کر دیا؟ بی جے پی جس نے حال ہی میں TRS کے خلاف چارج شیٹ جاری کی تھی اور 50 سوالات پوچھے گئے تھے۔ بی جے پی کی چارج شیٹ پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر موصوف نے سوال کیا کہ جوا کے کلب بند کرنے پر ہمارے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی اور GST کے ذریعے لاکھوں چھوٹے تاجروں کو سڑکوں پر لایا گیا ہے، کیا اس پر بی جے پی کے خلاف چارج شیٹ دائر کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو زرعی پمپ سیٹس پر میٹر لگانے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیا اس کے لیے بی جے پی کے خلاف چارج شیٹ دائر کرنا چاہیے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ 6 سالوں میں بی جے پی نے حیدرآباد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ عوامی شعبے کی کمپنیوں کو دیگر افراد کے حوالے نہیں کر رہے ہیں؟
इस तरह कंपनियों को निजकारी करने और हुकूमती और सरकारी तमाम जायदाद को दीगर निजी कंपनियों को बेचने को लेकर के पूरी तरह से जो है इस वक्त हमला किया गया है बीजेपी पर, और ये सारी की सारी TRS के लीडरान की जानिब से की जा रही है। नाज़रीन, आइए आपको मैं ले चलूँ उस ख़बर की जानिब जो ख़बर आज बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, और वो है एक इंसानियत सोज़ वाक़या। जहाँ मेरठ में इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया, जहाँ एक नवज़ायदा बच्ची को बोरे में डालकर सड़क किनारे कचरे के ढेर पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं जिसकी हिफाजत कुदरत करे उसे कौन नुकसान पहुँचा सकता है। तेज़ ठंड और ख़तरनाक जानवरों के ख़तरे के बावजूद इस बच्ची को बचा लिया गया है। मामला मेरठ के परतापुर थाना इलाके का है, जहां गोगोल रोड पर कचरे में पड़े एक बोरे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर राहगीरों ने बोरे को खोला तो एक नवज़ायदा बच्ची बरामद हुई। इत्तला मिलने के बाद परतापुर थाना पुलिस ने नवज़ायदा बच्ची को लेडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा। नाज़रीन, सीमेंट के बोरे से नवज़ायदा बच्ची को बरामद करने वाले राहगीर और मकामी अफराद का कहना है कि बच्ची को बोरे में भरकर फेंकने वाले का इरादा उसे मरने के लिए छोड़ देने का था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आवारा कुत्तों ने भी उसको अपना निवाला नहीं बनाया और उसके आसपास घूमकर उसकी हिफाजत करते रहे। वहीं बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर राहगीरों मकामी लोगों ने उसे बोरे से बाहर निकाला और पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस को इत्तला मिलने के बाद फ़ौरन ही PCR वैन मौके पर पहुँच गई, बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन इंसानियत सोज़ ये वाक़या जो आया है यूपी के मेरठ में आया है। अब इस बात की छानबीन कर रही है कि आखिर इसको बोरे में लाकर किसने फेंका और किस वजह से फेंका गया है, यह सारी चीज़ों की तहक़ीक़ात कर रही है। नवज़ायदा बच्चों के साथ ये जुल्म व सितम देख कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊँ इस वक्त जो अज़रबैजान से आ रही हैं। काराबाह की एक मस्जिद का ये मंज़र है, जहाँ पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ काराबाह के फ़तह के बाद यहाँ की एक तारीख़ी मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद को दरो दीवार को चूमा, दुआ मांगी और कुरान पर हिफाजत की कसम ली। सोशल मीडिया पर मस्जिद की तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही हैं। यहाँ आर्मेनियों ने सूअर और दीगर जानवर बांध रखे थे। अज़रबैजान अफवाज की फ़तह के बाद यहाँ अजान बहाल हो गई थी और इस तारीख़ी मस्जिद की बहुत सारी तस्वीर, वो तस्वीर बल्कि हमने भी अपने प्राइम टाइम में दिखाई थी कि किस तरह यहाँ से कुत्ते और दीगर जानवर जो नजिस कहलाते यहाँ घूम रहे थे, उनको बांध कर रखा जा रहा था। अब इस मस्जिद को पूरी तरह से आबाद कर दिया गया है। यहाँ आज़ान भी गूंज रही है और यहाँ पर अनकरीब इसको दोबारा पूरी तरह से सजा करके नमाज कायम करने का इरादा सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियूफ ने किया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और तस्वीर में आप लोगों को अभी जिस शहर का मैंने तज़किरा किया मेरठ, वहीं से आ रही है, वहाँ की रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग दीवार तामीर कर रहे हैं। ये दीवार तामीर करना खबर नहीं है, बल्कि जिस जगह पर जिस मकसद से दीवार तामीर किया जा रहा है वो असल में खबर है। दरअसल यहाँ आसपास के इलाक़ों में बहुत सारे तदीद तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं और SC ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। उनको बड़े, अपने आप को जो बड़ा समाज कहते हैं, उन समाज के गलियों से ना गुज़रने देने के लिए ये जो है दीवार तामीर की जा रही है, ताकि जो है वो लोग गुज़र ना सकें। इस वजह से जो है ये तामीर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त के आप SC ST तबके और दलित तबके के साथ किस तरह से जो है उनको हरासा किया जा रहा है और भारत की ये नई तारीख़ रकम की जा रही है। हालिया दिनों में जिस तरह के दलित और SC ST तबके के साथ जो जुल्म सितम की ख़बरें आ रही हैं, वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान और शशदर करने वाली हैं और बहुत ही भारत का एक ख़तरनाक चेहरा पूरे आलम के सामने पेश करने वाली है। नाज़रीन, आज न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा और उसकी वजह एक इश्तिहार था। कोरोना बहरान की वजह से दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन नाफिज और सख्त एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। इस वजह से सियाहती सरगर्मियाँ पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। चूँकि कई ममालिक में वैक्सीन पर तहक़ीक़ काम तेज़ी के साथ की जा रही है, इसलिए लोग पुरुम्मीद भी हैं कि जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। इस दरमियान मुंबई में एक टूरिज़्म कंपनी ने लोगों को वैक्सीन टूरिज़्म का ऑफ़र दिया है, जो तनाज़े का शिकार बन गया है। दरअसल एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की CEO अधिकार गुप्ता ने पीर के रोज़ एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये मैसेज एक टूरिज़्म कंपनी का है जो दिसंबर में अमेरिका के लिए पुरकशिश पैकेज की पेशकश कर रही थी। कंपनी के ऑफर में मुंबई से न्यूयॉर्क और फिर वापस मुंबई आने के लिए 3 रात और 4 दिन का पैकेज है,
جو 1,74,999 रुपये में मिलेगा। इस खर्च में हवाई जहाज़ का किराया और होटल में रहना शामिल है। साथ ही उसमें नाश्ता और वैक्सीन का डोज भी दिया जाएगा, जिसका तस्करा मैसेज में है। मैसेज में बताया गया कि इस पैकेज के तहत पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर बुकिंग होगी। मैसेज वायरल होने के बाद इस बात को लेकर के तनाज़ा शुरू हो गया कि अभी तो वैक्सीन का ट्रायल मुकम्मल भी नहीं हुआ है और ये भी तस्करा नहीं कि कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा। हंगामा बढ़ने के बाद इश्तिहार देने वाली कंपनी ने बताया सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद कंपनी ने बताया वो कौन लोग हैं जिन्हें तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि जल्द ही फाइजर वैक्सीन अमेरिका में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगी। मुमकिन है 11 दिसंबर से फिर हम कुछ VVIP क्लाइंट्स को ये वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है दवाई आने से पहले ही अमेरिका में सयाहत के लिए हिंदुस्तानियों को जो बुलाने की और उनको ऑफ़र देने की कोशिश हो रही थी वो कोरोना वैक्सीन थी। और कोरोना वैक्सीन के मंजराम पर आने से पहले इस तरह का इश्तिहार को लेकर के इस वक्त जो है न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। नाज़रीन गिरामी, यूथोपिया ले चलूँ मैं आप लोगों को। यूथोपिया के टगरी खित्ते में तनाज़े के आगाज़ से अब तक मुल्क छोड़ने वाले 45,000 से ज़्यादा मुहाजिरीन सूडान में पनाह ले चुके हैं। ये मालूमात सूडान की मुहाजिर एजेंसी के सरबराह अलसेर खालिद ने दी है। उन्होंने कहा कि यूथोपिया से नकल मकानी करके सूडान में पनाह लेने वाले अफराद की तादाद 45,000 से ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि इंसानी इमदादी तंजीमों के सुस्त काम की वजह से मुहाजिरीन के लिए रिहाइश के इंतज़ाम जैसे मकामी मसाइल बदस्तूर बरकरार हैं। इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि टगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट TPLF के बागियों ने पुरअमन हथियार डालने के लिए 3 दिन मांगे हैं और सरकारी अफवाज से शहरियों के साथ इजहार एकजहती का मुतालबा किया है। काबिल ज़िक्र है कि इथियोपिया की हुकूमत ने फ़ौजी अड्डे पर हमला करने के इल्ज़ामात के बाद सरकारी फ़ौज और TPLF के माबैन तनाज़े की सूरत हाल है। बहरकैफ नाज़रीन, इथियोपिया में क्या हालात हैं, वहाँ पर किस तरह जो है यहाँ की मकामी सख्त और शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से आम आवाम किस तरह हरासा किए जा रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और सूडान और दीगर आसपास के इलाकों में लगातार जा रहे हैं अपने मुल्कों को छोड़कर। और वही बात यहाँ कही जा रही थी कि इस वक्त इथियोपिया से सूडान को 45,000 लोगों की आमद हुई है, नकल मकानी हुई है। उनके रहने के लिए सही तौर पर जो है इस वक्त बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, ये कहा जा रहा था। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त अमेरिका, और लगता है कि ट्रंप का दिमाग ठिकाने पर आ गया है। अमेरिकी हुकूमत की इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदार इदारे जनरल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर GSA ने 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी इस वक्त तस्लीम कर ली है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी GSA को इंतकाली इक़्तिदार की तैयारी शुरू करने की हिदायत की है। ताहम साथ ही उन्होंने मुज़ाहमत जारी रखने का इरादा भी किया है। GSA की एडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सदारती इंतखाब में बाइडन की फतह तस्लीम करने का फ़ैसला उन्होंने कानून और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर किया है। मर्फी ने अपने ख़त में ये भी कहा है कि उन पर फैसला करने के लिए वाइट हाउस या और किसी इदारे की जिम्मेदार की जानिब से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई दबाव नहीं था। हुकाम का मानना है कि एमिली मर्फी ने बाइडन की कामयाबी तस्लीम करने का फैसला बज़ाहिर उन रियासतों के वोट्स चैलेंज करने की सदर ट्रंप की कोशिशों की नाकामी के बाद किया है, जहां दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ था। रियासत मिशिगन के इलेक्शन हुकाम ने पीर को ही इंतखाब में जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर फातेह करार दिया। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने दीगर कई रियासतों की तरह मिशिगन में भी धांधली के इल्ज़ामात आयद किए थे, जो बाद में जो है शवाहिद ना होने की वजह से गलत साबित हुए हैं। पीर को एमिली मर्फी का ख़त मंजराम पर आने की थोड़ी देर बाद सदर ट्रंप ने ट्विटर पर ऐलान किया कि उन्होंने मुल्क के मफाद में GSA की एडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी और उनकी टीम को हिदायत की है कि वो इंतकाली इख्तिदार से मुतालिक जो कवायद व ज़वाबित हैं उस पर काम करना शुरू कर दे। उनके बकौल उन्होंने अपनी टीम को भी कहा है कि वो भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वाइट हाउस छोड़ने को तैयार हो चुके हैं और इख्तिदार की मुंतकिली को राज़ी हो चुके हैं, यानी दूसरे अल्फाजों में अपने हार को वो पूरी तरह से तस्लीम कर चुके हैं। ये जो है ख़बर सामने आ रही है। नाज़रीन, आखिर में इस्तांबुल के एक टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी की खबर रखते हुए फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ कि इस्तांबुल में एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में भूले गए 3 लाख यूरोस उसके मालिक को वापस कर दिए हैं। बताया गया है कि इस्तांबुल के हवाई अड्डे से गैर मुल्की मुसाफिर टैक्सी में बैठा, जिसे होटल के दरवाजे पर छोड़ने वाले ड्राइवर ने गाड़ी के अक़बी नशिस्त पर एक बैग देखा जिसमें 3 लाख यूरो मौजूद थे। टैक्सी ड्राइवर ने फ़ौरन ही होटल इंतज़ामिया से रब्ता करते हुए पैसों से भरा बैग उसके मालिक के हवाले कर दिया है। इस तरह से भरी रकम को अचानक उसके मालिक को वापस करने पर वो टैक्सी ड्राइवर जो इस्तांबुल में इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, उसकी खबरें इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई।
بھائی ناظرین اس کی ایمانداری کی وجہ سے وہ سرخیوں میں رہا ہے. فی الحال مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار.